Hello everyone, I welcome all of you to my YouTube channel. This is Hoimonti and you're watching Mystic Sorceress. Today, I'm going to talk about 5 spiritual blockages to wealth that is nobody talking about. Okay? I have seen that most of us actually struggling in their relationship. Either they have complained that there is problem in their relationship, the partner is not loving them, or they are feeling unloved, or people mostly spend a lot of their time worrying about their finances, isn't it? So money and love are two dominant problem collective energy has. Okay, so before I proceed, I would like to tell you something which is very important for you to know, that your finances, your money is a reflection of your energy body. Okay, your finances is the reflection of your energy body. If you have this complaint that you struggle financially, okay, or you are very much stressed about your finances, there is imbalance in your energy. Okay, right. So you need to understand the deeper concept of energy which is associated with money. So today, stay tuned and watch this video till the end. Make a lot of notes. Check, do self-reflection whether you also have certain behavior, certain habits which is playing against you and that is creating financial obstacles in your life. Okay, so please do like, share, and subscribe to my channel. Hit the bell icon so every time I upload a video, you get notified. And if you wish to book one-to-one sessions with me, all the details are given in the description. Okay, I have also mentioned my community link below. You can also join my community for more updates. So the first blockages that I have seen, people who has a history of dysfunctional family background, they actually had gone through a lot of family struggle, or they were always chaos, conflict, argument, fight in their family. Those people often have problem with self-worth, unworthiness. Okay, they have this negative belief that they do not feel worthy about attracting more money. Either they will not set certain financial goal. Okay, that's this month I choose to have this amount of money. Okay, they will never do that. Why? Because there is a problem with their worthiness. क्यों होता है मैं बताती हूँ. Okay, tarot में this particular card, five of pentacles, this particular card talks about poverty mindset, unworthiness, about financial abundance. You can see these two people are standing in front of church, but they feel that they are so misfortunate that help is not there. They don't really feel that their prayer would have been heard. इनको ये लगता है कि मांगने से भी क्या फायदा, हेल्प मांगने से भी क्या फायदा, मैं तो इतना अनलकी हूं कि मुझे हेल्प ही नहीं मिलेगा. So people I have seen who has डिसफंक्शनल फैमिली हिस्ट्री, जिन्होंने बचपन में बहुत फाइट्स देखा है, केओटिक फैमिली में बड़े हुए हैं, बहुत झगड़ा देखा है, ताने सुने हैं बहुत ज्यादा, राइट. दोस डिसफंक्शनल टॉक्सिक बैकग्राउंड से जो लोग हैं, दे ऑफन हैव दिस माइंडसेट दैट देयर इज नो हेल्प, दे शुड नॉट आस्क फॉर मनी, राइट, दे शुड नॉट आस्क फॉर हेल्प. बहुत केसेस में मैंने देखा है दीज पीपल हैज दिस टेंडेंसी ऑफ आइसोलेटिंग देमसेल्फ. ये अकेले रहने लगते हैं. Even if they are literally upset, even they are struggling with their finances, they feel this is what they deserve. They are unworthy of prosperity, they are unworthy of getting the help from outside. They stop meeting people, they stop looking for help. उनके दरवाजे पे भी कोई नॉक करे ना कि पता है आप ये कर सकते हो,
they will not be receptive to opportunities as well. So tarot में 5 of Pentacles talks about your finances are getting blocked because of your belief of unworthiness. आप अपने आप को विक्टिम मानते हो, आप सोचते हो कि आप ट्रीटमेंट के भी लायक नहीं हो. Have you seen there are people who crib about their health but not take any initiative to improve their health because ये गरीब है माइंडसेट से. दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ पॉवर्टी माइंडसेट एंड ये बहुत कॉमन है, आपको बहुत जगह पे दिखेगा. हो सकता है कि इस वक्त आपको लग रहा है कि यू नो दिस इज मी, somebody told me that I have gift related to cooking, मे बी मेरी कुछ अलग जगह की एक्सपर्टीज है, मैं अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर सकता हूँ, but you were not receptive to that idea because you feel you are unworthy of. आपसे नहीं हो पाएगा, right? These people feel that even there is no point of praying to God because they are unworthy of that help. God will not listen to their prayer. ऐसी गरीबी है. गरीबी ये एक्चुअल गरीबी नहीं है. This is a poverty of mindset. So people who have history of dysfunctional childhood, उनका ये बहुत कॉमन एक फाइनेंशियल ब्लॉकेज रहता है, माइंडसेट की ब्लॉकेजेस. दे don't even ask for next promotion even if they deserve. They will not look for other opportunities, other companies जहाँ पे ज्वाइन करने से उनको हाइक मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकती है. वो इनिशिएटिव नहीं लेते हैं. Okay, so now next blockage, what I'm going to talk about, it is about ancestral blockages. Ancestral blockages क्या होती है? अगर आपके किसी ancestors ने फाइनेंशियली स्ट्रगल करा है बहुत साल, और आपने ये स्टोरी सुना है कहीं कहीं ना कहीं कि आपके फादर ने बहुत स्ट्रगल करा है या आपके एंसेस्टर्स ने बहुत स्ट्रगल करा है, कि आपके फादर लेबर थे या बहुत गरीब जगह से वो उठ के आए हैं और फाइनेंशियली स्ट्रगल किया है आपके किसी पूर्वज ने. अगर ये स्टोरी आप सुन के आए हो कहीं ना कहीं, तो एंसेस्ट्रल कार्मिक ब्लॉकेजेस भी क्रिएट होता है जो आपको नहीं पता पर अनकॉन्शियसली आपको कंट्रोल कर रहा है. क्योंकि एंसेस्टर्स की जो भी स्ट्रगल होती है, जो भी ट्रॉमा होता है, वो पास ऑन होता है. अगर आपके एंसेस्टर्स ने उस ट्रॉमा को, उस मेमोरी को, जो स्ट्रगल वाली मेमोरी है, उसको रिलीज नहीं करा है. मोस्ट ऑफ द केसेस में रिलीज करते नहीं है लोग, क्योंकि लोग हीलिंग में नहीं आते. पीपल डोंट रियली practice spirituality that much. But I'm not talking about only worshiping God. Worshiping God is a different thing. Do not misunderstand. I mean, worshiping God and practicing spirituality, both the different thing. ठीक है? मेमोरी को अपना रिलीज करना और पूजा प्रार्थना करना या भोग लगाना इज अ डिफरेंट थिंग. वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं है. आई मीन, वो पर्टिकुलर चीजें आपके नेगेटिव मेमोरी को रिलीज करने में हेल्प नहीं करेगी. उसके अलग फायदे हैं, ऑफ कोर्स. आपको फेथ मिलता है, आप प्रार्थना करते हो, दैट हेल्प्स यू. बट ये जो मैं बात कर रही हूँ, ये अलग चीज है. एंसेस्ट्रल ट्रॉमा को रिलीज करना, उसकी अलग प्रोसेस होती है, उसके अलग प्रैक्टिसेस होती है, और बहुत लोग उस पर काम नहीं करते जनरली, अगर वो अवेयर नहीं है या वो हीलिंग में नहीं आए हैं कभी. ओके, सो दे डोंट नो कि बट दे विल ऑलवेज लिमिट देयर फाइनेंशियल ग्रोथ. उनकी लिमिटेशंस उनके पास्ट से आ रहे हैं. क्यों? क्योंकि अगर आपके पूर्वज ने कभी ना कहीं कहीं पे फाइनेंशियल स्ट्रगल करा होगा, तो वो ट्रॉमा जो है, वो मेमोरी जो है, वो उनके बॉडी में रहता है until and unless somebody does the healing. और वही ट्रॉमा अगर हील नहीं हुआ है, वो पास ऑन होता है नेक्स्ट जनरेशन में भी. अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आप सोच रहे हो कि हाँ, मेरे पेरेंट्स का तो ये स्ट्रगल था, मेरे पूर्वज का तो ये स्ट्रगल था, यस, दे ओवरकम फ्रॉम द सिचुएशन बिकॉज दे डिड लॉट ऑफ हार्ड वर्क. हार्ड वर्क से उन्होंने शायद सिचुएशन को इंप्रूव करा है, बट दैट मसल मेमोरी इज स्टिल देयर. दे आर कैरिंग इन दिस सिस्टम एंड डीएनए से वो आपके ऊपर भी ट्रांसफर होता है. तो कहीं ना कहीं वो भी आपके फाइनेंसेस को कंट्रोल करते हैं एनर्जेटिकली.
So tarot में this particular card, Hierophant, that often talks about your financial struggle is coming from your ancestral trauma. आपने अपने इन्वायरमेंट में जो सुना है, अगर आपके सोसाइटी की जो नेगेटिव कंडीशनिंग है, फैमिली की जो नेगेटिव कंडीशनिंग है, ओके, और आपकी कम्युनिटी से रिलेटेड जो नेगेटिव कंडीशनिंग है, वो सारी चीजें आपके फाइनेंसेस को इफेक्ट कर रहा है. कम्युनिटी का नेगेटिव कंडीशनिंग क्या, ये मैं बताती हूँ, ये क्या होता है. बहुत लोग ये सोचते हैं कि स्पिरिचुअल कम्युनिटी में जो लोग हैं, दे शुड नॉट सेल देयर स्पिरिचुअल सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी. अगर आप पुरोहित हो या अगर आप कोई स्पिरिचुअल काम में जुड़े हुए हो, आपको ज्यादा पैसा नहीं मांगना चाहिए. ज्यादा पैसा मांग रहा है वो इंसान, मतलब वो ग्रीडी है. हाल ही में एक रील बहुत वायरल हुई थी यूट्यूब में, ओके, एंड ये रील जो था वो एक लेडी के बारे में था. शी इज वेरी पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया एंड वो भगवत गीता का पाठ करती है एंड शी इज वेरी सक्सेसफुल एज वेल. तो उनके बारे में एक रील क्रिएट करा था किसी पॉडकास्टर ने, और डिस्कशंस हो रही थी कि द काइंड ऑफ अमाउंट शी चार्जेस फॉर हर वन कथा, वो बहुत ज्यादा है. और कोई एक सन्यासी भी थे, उन्होंने ये कमेंट पास करा था कि शी शुड नॉट डू दिस. एग्जैक्ट स्टेटमेंट मुझे अभी याद नहीं है, पर वो डिसएग्री कर रहे थे. उनके अकॉर्डिंग ये था कि आप भगवत का पाठ करने के लिए इतना चार्ज नहीं कर सकते. ठीक है. सो चार्जिंग गुड अमाउंट फॉर योर स्पिरिचुअल सर्विसेज इज समथिंग रॉन्ग. पैसे की भूख है, ये बहुत लोग सोचते हैं. ये कम्युनिटी का बिलीव है. दिस इज नॉट द ट्रूथ. पीपल थिंक इट इज द ट्रूथ. आपको इतना पैसा चार्ज नहीं करना चाहिए अगर आप ये साधना कराते हो तो. इतना पैसे का क्या मतलब है? People look down upon those people who are into spiritual services and they charge good money. ये community का belief system है. This is in their unconscious belief. And you know the fact about belief is, belief just programming है. आप एक statement को अपना programming बना लेते हो. Belief does not has to be truth. सच और belief same नहीं होता. Belief मतलब आप मानते हो इसको. ठीक है, आप मानते हो कि ये चीज करना सही नहीं है, जरूरी नहीं ये सच हो. एंड दैट इज वाई ओशो के लाइफस्टाइल को लेके बहुत लोगों का ऐसा क्रिटिसिज्म भी था कि ये इंसान स्पिरिचुअल सर्विसेज में होने के बाद भी कैसे इतनी लग्जरी को अफोर्ड कर सकता है. दिस इज समथिंग रॉन्ग. पर ये नेगेटिव बिलीव है, लिमिटिंग बिलीव है. दिस इज नॉट द ट्रूथ. ओके, सो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है. तो ये बताता है कि आपका कम्युनिटी का बिलीफ आपको रोक रहा है, आपको लिमिट कर रहा है. आपका कोई फैमिली कंडीशनिंग है, ठीक है, कि अगर आप डॉक्टर हो, आपको गरीबों की सेवा करना चाहिए फ्री में बस. यू शुड नॉट आस्क फॉर मोर मनी. ठीक है. अगर आप टीचर हो, अगर आपका ये कम्युनिटी बिलीव है या किसी ने आपको सिखाया है कि रिलेटिव से पैसे नहीं लेते, रिलेटिव से आप पैसे नहीं मांग सकते, ये आपकी लिमिटिंग बिलीव है. क्या वो रिलेटिव दूसरा कोई टीचर के पास अगर जाता तो क्या वो वहां पे पैसे नहीं देता? These are limiting beliefs. Hierophant talks about limiting beliefs. So don't confuse. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप गरीब से बहुत ज्यादा पैसे लो. I'm not telling you that. But what I'm trying to tell you that कि ये पर्टिकुलर कार्ड आपको आपके नेगेटिव कंडीशनिंग जो आपने सीखा है समाज से, लोगों से, उसके बारे में अवेयर करता है कि वो आपको लिमिटेशन क्रिएट कर रहा है. ओके, वी ऑलवेज नीड टू बैलेंस, है ना. हम सर्विस भी करेंगे पर हमें बैलेंस भी करना है कि हम खुद के लिए भी सर्विस कर रहे हैं ना, सिर्फ लोगों के लिए नहीं, है ना, सबके लिए. क्योंकि यूनिवर्स में इम्बैलेंस क्रिएट होता है. अगर आप बहुत सेल्फ सैक्रिफाइस करके लोगों के लिए कर रहे हो, दैट क्रिएट्स एन इम्बैलेंस. यू ऑल्सो नीड टू टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर ओन अबंडेंस, कि आप भी भूखे ना रहो, क्योंकि यूनिवर्स में बहुत है सबके लिए. ओके, आई कैन फीड यू एज वेल एज फीड माई सेल्फ. आपको फीड करने के लिए मुझे भूखा मरना जरूरी नहीं है.
Okay, so yeah, so next blockage that I'm going to talk about is fear of success. Fear of success क्या होती है कि बहुत लोग ना ग्रो करने से डरते हैं, एक लिमिट के बाद सक्सेस को अचीव करने से डरते हैं। क्यों? सक्सेस के साथ पैसे आते हैं, पैसे के साथ उनको डर लगता है कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगे, लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशन करने लगेंगे, और अगर मैंने एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाया तो क्रिटिसिज्म आएंगी, नेगेटिव फीडबैक्स आएंगी, तो दे टेंड टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट टू लिमिट देयर फाइनेंशियल अबंडेंस, जस्ट टू लिमिट देयर सक्सेस। और कैसे करते हैं लोग? बाय escaping their responsibility. Okay, so I had one client जिनके बिजनेस में घाटा चल रहा था. Okay, that person was facing some sort of loss in his business. Why? Because उसको नहीं पता था कि क्यों उसके बिजनेस में क्लाइंट चले जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे अपने फूड बिजनेस में. तो लोगों को टेस्ट नहीं मिल रहा था, क्वालिटी डिग्रेड हो रहा था, तो लोग जा रहे थे. That person had no awareness ki why that person was doing, because of his unconscious fear about related to success. उसको डर था, ये उसकी अनकॉन्शियस पैटर्न थी, उसको डर था कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट देने लगूंगा तो क्लाइंट बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुझसे, और उस एक्सपेक्टेशंस को अगर मैं मीट नहीं कर पाया तो नेगेटिव फीडबैक्स आएंगे. एंड जस्ट टू अवॉइड ऑल दोज responsibility which comes with success, which comes with lot of money, unconsciously वो बहुत खराब प्रोडक्ट्स यूज कर रहा था अपने खाने में. ऐसे बहुत लोगों के केस में होते हैं कि पीपल टेंड टू कट द कॉर्नर्स. उनका बस फोकस ये होता है कि मैं खुद प्रॉफिट कमा लूं एंड बिजनेस कर लूं, और उनके बिजनेस में बहुत केसेस में प्रॉब्लम्स होती हैं बिकॉज दे आर ट्राइंग टू कटिंग द कॉर्नर. खराब प्रोडक्ट्स देके they are not doing what is needed to do. बहुत लोग होता है ना कि मेथड में फोकस नहीं करते, उनको बहुत जल्दी चाहिए सक्सेस, बहुत जल्दी पैसे चाहिए. दे ऑफन डू दिस मिस्टेक, दे डोंट फॉलो द प्रोसेस. एक शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन से पैसे मिल जाए. दे आर ओनली फोकस्ड ऑन देयर प्रॉफिटेबिलिटी. बहुत ज्यादा फेक प्रॉमिस करेंगे कि आप ये ले लो, ये प्रोडक्ट ले लो, ये सर्विसेज ले लो, आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि देयर ओनली फोकस इज टू सेल देयर प्रोडक्ट. So this card talks about that Five of Swords talks about don't cut the corners. Take responsibility. Follow the process. So success और financial abundance के लिए responsibility भी लेनी होती है कि responsibility to solve people's problem. Responsibility to do the work which is needed to solve that problem. And don't avoid those problems. Don't cut the corners. ये लक्ष्मी जी का या फाइनेंशियल अबंडेंस का एक बहुत बड़ा रूल है कि डोंट कट द कॉर्नर्स, डोंट यूज लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स. इफ यू आर टेकिंग वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, take that responsibility with gratitude, with appreciation. सोचो कि आपको एक मौका मिल रहा है टू सर्व दोस कस्टमर. ओके, तो सेवन ऑफ सॉर्ड्स टॉक्स अबाउट कि आप फियर से डर रहे हो, आप सॉरी, आप सक्सेस से डर रहे हो. यू हैव फियर ऑफ सक्सेस, दैट इज व्हाई यू आर अवॉइडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड व्हाई पीपल फियर सक्सेस? एक्चुअली सक्सेस को फियर करने के साथ इंटर रिलेटेड ये भी है कि दे फियर whether they are capable of handling lot of money. Okay, so ये unconscious minds की conditioning है. So next blockage what I'm going to talk about, blockages of receiving money. Okay, blockages of receiving money. What is that blockages is all about? क्या आपने देखा है कि बहुत लोग हैं जो बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक हैं. They have this tendency to have long to do list. दिन के शुरुआत से रात के एंड तक they keep on doing work. They have this tendency of putting lot of effort.
उनको लगता है बहुत ज्यादा काम करेंगे तो बहुत ज्यादा पैसे आएंगे, and they have this unconscious blockages that they always feel guilty when they rest. उनको लगता है अगर मैंने ब्रेक ले लिया, घूमने चला गया या रेस्ट कर लिया, then I'll not have the success I want. Is this the truth? No. Maybe they have learned from this from their environment, और कहीं से किसी ने उनको सिखाया होगा. पर ये जो एक्सेसिव वर्कोहॉलिक टेंडेंसी है ना, और जब भी वो रेस्ट करने जाते हैं या लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं, व्हेन दे हैव फन दे फील गिल्टी. ये पर्टिकुलर हैबिट अगर आपका भी है, you could have this particular blockages of receiving money, receiving financial abundance. You associate your self-worth with doing things. अगर कोई काम नहीं करते हो ना, आपको लगता है आप वैल्यूएबल नहीं हो, आप बेकार हो अगर आप काम नहीं करते हो तो. बहुत लोगों को ये लगता है काम नहीं करता हूं मैं और मैं रिटायर हो गया हूं तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है. Why? Because you have this blockage. See, you can see this person. This particular card talks about this particular card's name is Four of Cups. This person is not receptive of the abundance which is available for him. यहाँ पे universe is offering him a cup. पर ये क्यों रिसीव नहीं कर रहा है पता है? Because that person is resting under the tree. इनको लगता है कि just because I'm not doing the work, I am unworthy of the abundance and prosperity and opportunity and all good things which is available for me. क्योंकि मैं काम नहीं कर रहा हूं, I am not doing the hustle, I should not receive the blessing. इसीलिए ये closed off है. That person has blocked his heart chakra. हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे चक्रास होते हैं. हार्ट चक्रा वो चक्रा है जिसके थ्रू हम रिसीव करते हैं. We receive appreciation, we receive good ideas, we receive opportunities, we receive money. इनको लगता है कि मैं लायक नहीं हूं. ये बहुत लोगों को लगता है, स्पेशली मैंने देखा है कि जो लोग रिटायर हो गए हैं ना, या जो लोग अभी एक्टिवली इनकम नहीं करते, उनको लगता है कि मैं लायक नहीं हूं, बिकॉज आई एम नॉट कंट्रीब्यूटिंग. I should not receive the abundance which is available. और स्पेशली अगर आपको बहुत ज्यादा काम करने की हैबिट है और रेस्ट करने के टाइम पे आपको गिल्टी फील होता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगी और अगर आई एम नॉट एक्सेसिवली बिजी, आई विल नॉट गेट द मनी आई डिजर्व. This card talks about sometimes you also need to trust that by just being yourself you can still receive abundance. You don't always need to hustle. Okay, so the next card I'm talking about is Devil card. So the last but not the least blockage that I'm going to discuss in this video is energy leakage. Okay, energy leakage कैसे होती है? So many of us has certain attachment to materialism. Okay, some unhealthy habits we practice which actually leaking our financial frequency, financial energy. And अगर devil card reading में आता है तो ये पर्टिकुलर कार्ड बता रहा है कि जो पर्सन है उनके फाइनेंशियल लॉसेस का रीजन ये है कि दिस पर्सन हैज सर्टेन अनहेल्दी हैबिट्स रिलेटेड टू हैंडलिंग देयर फाइनेंसेस. या तो ये इंसान दूसरे को खुश करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंस कर देता है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपेंस कर देता है, बहुत बर्डन कर देता है अपने आपको. या तो ये इंसान का कुछ टॉक्सिक हैबिट है, जब भी पैसे अकाउंट में आते हैं दैट पर्सन हैज दैट लॉन्ग विश लिस्ट and they feel they need to buy everything in this month. They have this tendency of overexpending, getting rid of money. Sometimes this card also talks about you are prioritizing your pleasure over your need. What does that mean? बहुत लोगों को आपने देखा है कि पार्टी के नाम पे उनके पास बहुत पैसे रहते हैं. If it is about spending on alcohol, spending on
clothes, they have a lot of money, but they compromise on their needs. अगर exercise में पैसे देने हैं, they will crib about money, they will delay paying their credit card bills. Okay, ब्रॉडबैंड बिल्स है, उसको लास्ट में पेमेंट करना है, पहले मैंने जो ड्रेस रख दिया है विश लिस्ट में उसको बाय करने दो. समटाइम्स पीपल ऑल्सो क्रिब अबाउट बाइंग देयर ग्रोसरी, अपने डेली नीड जो है खाने पीने का, उसमें वो कट डाउन करते हैं. They try to cut down on their needs and prioritize their pleasure. Maybe somebody needs to invest on their personal development thing. उनको जिम की मेंबरशिप स्टार्ट करनी थी, उनको स्विमिंग की क्लासेस स्टार्ट करनी थी, विच कैन हेल्प देम ग्रो. उनको योगा स्टार्ट करना था, उनको पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई कोर्स खरीदने थे, या उनको बिजनेस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लीगल वर्क है, टूल्स खरीदने हैं, उसमें इन्वेस्ट करना था. पर उन्होंने क्या किया? दे पोस्टपोन एवरीथिंग एंड दे डिसाइड टू बाय द मोस्ट पॉपुलर गैजेट. पुराना फोन काम कर रहा था, उसमें प्रॉब्लम नहीं था, पर नया कोई मॉडल आया है, नाउ दे नीड टू बाय दैट. इवन इफ इट्स रिक्वायर्ड टू यूज देयर क्रेडिट कार्ड, दे विल डू दैट एंड दे विल कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर नीड्स, बेसिक नीड्स. तो ये लोग सर्वाइवल में जो उनकी जरूरत है उसमें कट डाउन कर देते हैं. ऑल्सो दिस कार्ड टॉक्स अबाउट मे बी यू हैव एक्सेस ऑफ थिंग्स. आप बहुत सारी चीजों को खरीद के जमा कर रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग इट. This card talks about clear your energetic clutter. बहुत ज्यादा एक्सेस भी अगर आपके पास है जो आप यूज नहीं कर रहे हो, वो आपके फाइनेंशियल फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है. और मे बी यू आर बाइंग लॉट ऑफ थिंग एंड स्टोरिंग इट फॉर द फ्यूचर. वो आपके फाइनेंसेस को ब्लॉक कर रहा है कि जो आपको अभी जरूरत है उसके लिए आपके पैसे नहीं बच रहे हैं. That is your unhealthy habits related to materialistic obsession. So, ये मैंने 5 ब्लॉकेजेस के बारे में आज डिस्कस करा है. आई होप यू रिफ्लेक्टेड ऑन योरसेल्फ, कहाँ कहाँ पे कौन सी हैबिट्स आपके लाइफ में भी काम कर रही है. यू नो, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग. When you choose to become aware, you choose to see your tendencies which is stopping you from growing. And what you start seeing, you start healing. What you don't see, you don't heal. Right? So I hope you found it helpful. And if you found it helpful, let me know in the comment. I would love to know. Like, share, and subscribe to my channel. Hit the bell icon so every time I upload a video, you get notified. And if you wish to book one-to-one sessions, you can reach out to me. My WhatsApp number is given in the description. Always remember, your financial fortune is your creation, your manifestation. It is not written in the star that you are destined to be poor, or you're destined to be rich. You can change your financial fortune by changing your energy, by doing intentional work, by changing your habit. I hope you found it helpful, right? Lots of love. I will see you next. Bye.